سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ نیت سبھی کی ہو یہ، نیت سبھی کی ہو یہ، کرنا ہے اعتکاف اب چلتے رہے نبی جی، جس کو دوام لے کر۔ رمضان آ رہا ہے، پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے، پیارا قیام لے کر۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں۔ آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں 2 گھنٹہ آپ کو بیان سناؤں گا، پھر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ تو عیدگاہ ہے، اگر میں 2 گھنٹہ بیان سنانے کی غلطی کروں گا تو سیدھا قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ خیر، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مسلمان کا ہوا، لیکن وہ عام مسلمان نہیں ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، دنیا کا کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا۔ دھرتی کا بوجھ مسلمان، اس کی قسمت کہ وہ مسلمان تھا، اس کا مقدر کہ رمضان میں مرا ہے، فائدہ ہوگا تو حدیث کہتی ہے ڈبل ڈبل فائدہ ہوگا۔ چاہے کتنا ہی بڑا پاپی مر جائے، مگر قسمت سے مسلمان تھا، مقدر اس کا کہ رمضان میں مرا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی مسلمان کوئی رمضان میں مرے گا، سیدھا جنت میں پہنچے گا، اور رمضان کے صدقے میں عذاب قبر بھی اٹھا لیا جائے گا۔ مرنے والا مسلمان نہیں تھا، ہم سوچے کہ شاید پیسہ آ رہا ہے، لیکن پیسہ تو ختم ہو گیا۔ خیر ماشاءاللہ، مرنے والا رمضان میں مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم مرا ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے ساتھ مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں۔ کافر مرا ہے، کفر کے ساتھ مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں۔ مگر قسمت اس کی کہ وہ رمضان میں مرا ہے، مقدر اس کا کہ رمضان میں اس کی موت آئی۔ فائدہ ہوگا تو لکھا اس کو بھی فائدہ ہوگا، جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، لیکن رمضان کا صدقہ پورے رمضان عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک بات کو دیکھیے گا، عصر کے بعد جب دسترخوان لگتا ہے، افطار کے لیے دسترخوان لگتا ہے، تو اس میں رکھا جاتا ہے پھلوری، پکوڑی، پپیتا، انگور، انڈا، تربوز۔ تربوز کا تو یہ تو بھنڈاری ہے، باپ رے باپ، یہ پورا تربوز یہاں سے جاتا ہے، وہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب تک ابھی اذان کی صدا نہیں آتی ہے مسجد سے، تو آدمی دیکھتا رہتا کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے۔ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا آئی، تربوز کو اٹھایا، حلق کے نیچے اتارا، شربت کو اٹھایا، حلق کے نیچے اتار لیا، رگ رگ سیراب ہو گئی، دل کو سکون پہنچا، آنکھ ادھر ٹھنڈی ہوئی، دل ادھر خوش ہوا۔ 1 منٹ میں جو مزہ آتا ہے، سال بھر ایسا مزہ نہیں آتا۔ لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اس سے بھی زیادہ مزہ کہاں آئے گا؟ دنیا میں نہیں، جنت میں۔ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، جنت کی نعمت کو اٹھا کر کے حلق کے نیچے اتارے گا، جب بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کا بنانے والا مالک خدا سامنے آئے گا اور اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا، تو جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک غیر مسلم بولا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ ایک عالم دین نے کہا جنت ملے گی۔ کہا جنت کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بڑھ کر کے ہے تو بتاؤ۔
जन्नत के बदले में कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। जन्नत से बेहतर है तो बताओ। वो आलिम दीन थे, कहा कि मैं जन्नत से बेहतर की जमानत लेता हूं, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, तुमको खुदा का दीदार होगा। खुदा के दीदार पर कुर्बान हो गया कलमा पढ़कर मुसलमान। एक बहरा बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, तो वो तो सुनता कुछ है नहीं, सिर्फ बोलता है। तो बीमार से जाकर के बोला क्या हाल है? तो बीमार बोला कि मर रहा। का सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? तो बीमार खिसिया करके बोला जहर खा रहा। सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन पाबंदी से खाते रहे। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? बोला कि मलकुल मौत से। का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, ईद में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये कन्या के भी मामू है और दुल्हा के भी मामू है। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया हूँ, आप भी सोच नहीं सकते। अगर आपका जलसा होता तो मैं बोरा में कर ही देता। हज़रत मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातुहुम की तरफ से मुझे दावत मिली थी, इसलिए बादिल नाखास्ता मुझको आपकी खिदमत में आना पड़ा। मैं इनके वास्ते दुआ करता, अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, इनका साया तायत कायम फरमाए। आपके जलसे में इतनी दूर से मैं आया हूँ, अगर मुझे 3 मिनट का टाइम मिलता तो ये मैं पैगाम आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करके ले जाते तो मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता कि आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना है। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। पैसा थोड़ा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं दूसरे को देख करके दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है, पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं मसरत रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। खुदा किस पर मेहरबान है? अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर मेहरबान है? आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए गरीब के ऊपर। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा। क्या हाल है? खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। मैं मादेपुर आकर के परेशान नहीं हूं कि यहाँ के लोग कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं। मैं यहाँ आकर के इस बात से परेशान हूँ कि कहीं ये लोग शादी में दूसरे को दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा करके 10 साल की मेहनत को एक झटके में हवा हवा न करें। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। अभी आने वाला है रमजान के बाद ईद जैसा मौसम आने वाला है। ईद को लोगों ने इबादत नहीं रहने दिया, त्योहार बना दिया। ज़कात मदरसे में देनी थी, वो पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। फितरा गरीबों को देना था, उस पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। जेब को जेब नहीं देखा।
मार्केट में पैसा को पैसा नहीं समझा, नतीजा ये हुआ कि ज़कात का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया, फितरा का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया। अब कोई गरीब आता है तो उसको धक्के मारता है, मदरसे का आदमी आता है तो उसको धुतकारता है। इस वजह से मुस्तहिक को जलील करने के नतीजे में रमजान पाने के बाद भी जिंदगी भर जलील रहता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। एक आदमी रोजा रखता नहीं था और बीवी से कहता था कि मैं रोजे से हूं, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, और रोजा हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख लगती थी तो डंगरा घाट में जाकर के डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके अंदर पानी पी लेता था और ऊपर आकर के पूरे दस्तरखान को चाट जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डंगरा पुल में डुबकी मारी, उसने मुंह खोला तो पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली चली गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर भी कह रहा किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। झूठ बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से।